Hello everyone, welcome back to the Global channel, and today we will start with the next part of the interior structure of the earth. So let's do a quick revision कि हमने अपनी last lecture में क्या क्या पढ़ा था. तो सबसे पहले we did two ideas, old idea and new idea. Old idea में we did सियाल, सीमा एंड मैंटल. इसको अभी के लिए हम इग्नोर कर देते हैं बिकॉज आवर मेन फोकस इज ऑन सियाल एंड सीमा. सियाल हमने पढ़ा था कि ये कॉन्टिनेंट्स हैं एंड सीमा हमने पढ़ा था दीज आर ओशंस. तो इस ओल्ड आइडिया में से क्या डिराइव हुआ था दैट कॉन्टिनेंट्स फ्लोट्स ओवर द ओशंस, जो लेटर ऑन स्टडीज में इट वाज प्रूवन रॉन्ग. न्यू आइडिया आया था दैट अर्थ हैज थ्री लेयर्स, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. सो वी हैव क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. क्रस्ट के फर्दर हमने दो पार्ट्स करे थे, दैट वाज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट and oceanic crust. Mental के we have done further three parts: upper mantle, middle mantle and lower mantle. Core के we have done further two parts: outer core and inner core. इसके बाद हमने इसका अर्थ का एक लेआउट देखा था, that we have asthenosphere, we have lithosphere, like this. Okay. So हमने देखा था that we have continental crust, oceanic crust, उसके बाद upper part of mantle which is in solid form. उसके बाद हमने देखा था यहाँ पे नीचे asthenosphere which has olivine minerals. इनकी टेंडेंसी होती है कि जैसे हम स्ट्रेस लगाते हैं तो इट विल फ्लो. नेक्स्ट हमने देखा था हमारा मिडिल मेंटल, लोअर मेंटल. नेक्स्ट आता है आउटर कोर एंड इनर कोर. जो आउटर कोर होता है इट इज फ्लूइड इन नेचर. इसके अंदर हमारे पास आयन्स होते हैं जो कंटिन्यूसली रोटेट करते हैं. जो कंटिन्यूसली रोटेशन होती है इन आयन्स की, इससे हमारे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मेशन होती है, जो अप टू अ हाइट ऑफ 36,000 किलोमीटर के एरिया तक फैली हुई होती है, विच इज वेरी इम्पोर्टेंट. नेक्स्ट वी हैव आवर इनर कोर, जो सबसे सॉलिड होती है एंड सबसे ज्यादा डेंस होती है. राइट, सो दिस वाज द last lecture in which we have covered all these things. तो आज हम further more इसी डायग्राम में और डीप चलते हैं. So for example, continental crust and oceanic crust. This is the part of crust. उसके बाद जो हमारा मेंटल होता है, इन दोनों के बीच में we have some discontinuity named as Mohs discontinuity. उसके बाद वी हैव मिडिल मेंटल एंड लोअर मेंटल के बीच में वी हैव रिपीटेड डिसकंटिन्यूटी. सो दीज टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटीज वी विल डू टुडे इन आवर लेक्चर. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, so first we have the first discontinuity which we will see is, ये हमने बनाया अपना कॉन्टिनेंटल क्रस्ट and this is oceanic crust. So continental crust is further divided into two main parts. So this is known as upper granitic layer
upper granitic layer, and the lower part is known as lower basaltic layer. So basalt is heavier, तो ये नीचे है, ग्रेनाइट इज लाइटर इसीलिए ऊपर है, राइट. सो इन दोनों के बीच में जो एक डिसकंटिन्यूटी है, द नेम ऑफ दिस डिसकंटिन्यूटी इज कॉनराड्स डिसकंटिन्यूटी. सो दिस इज द डिसकंटिन्यूटी नेम्ड एज कॉनराड्स discontinuity. So this is known as Conrad's discontinuity, which is between upper granitic layer and lower basaltic layer. Next we have the discontinuity between, this is crust, and this part is mantle part. So between mantle and crust, the discontinuity between crust and the mantle is known as Mohs discontinuity, or the full name of the scientist is Mohorovic or Mohorovic, whichever you want to pronounce it, but this is known as Mohs discontinuity. Next discontinuity we have between middle mantle and lower mantle. Middle mantle and lower mantle, and this continuity is named as Repeties discontinuity. Repeties discontinuity between middle mantle and lower mantle. Next discontinuity is between lower mantle and outer core. This is lower mantle and outer core. So the name of this continuity is Gutenberg's discontinuity. Gutenberg's discontinuity. The last discontinuity which we can see is between outer core and inner core. Between these two, we can see this is Lehmann's discontinuity. Lehmann's discontinuity. So these are the 5 discontinuities you can see. The first is Conrad's discontinuity, which is between the upper granitic layer and lower basaltic layer. Second is Mohs discontinuity between crust. This is between crust and mantle. This is mantle. Next discontinuity is Repeties discontinuity between middle mantle and lower mantle. Middle mantle and lower mantle. The fourth discontinuity is Gutenberg's discontinuity between lower mantle and outer core, and the last is Lehmann's discontinuity between outer core and inner core. So you can take the screenshot of this. Okay, so some extra information I would like to share with you, that in last lecture we have done lithosphere.
So lithosphere comprises of continental crust, oceanic crust, and some part of upper mantle, which is in solid form. So we can derive that lithosphere is cold, hard, and brittle, and it is not continuous layered. Okay, so it has broken segments, and these segments are named as plates. And these plates or the lithosphere floats over asthenosphere. Asthenosphere has a special property or a feature of olivine minerals. जब भी इन minerals पे stress लगता है ये flow करना start करते हैं. Okay, I'll get it. Lithosphere consists of continental crust, oceanic crust, and some part of upper mantle, which is in solid form. Okay, so lithosphere is hard, cold, and brittle. Lithosphere is not continuous, rather it is broken into segments, and these segments are known as plates. These segments are known as plates. Now let's talk about asthenosphere. Asthenosphere has a very special feature of olivine minerals. Olivine minerals. इनकी एक special property है, जब भी इन पे stress लगेगा, they will start to flow. ये flow करना start करते हैं. Therefore, it can say that asthenosphere and जो हमारा lithosphere है, the lithosphere floats over asthenosphere. Alright? Okay. So now, अब हम ये पढ़ते हैं कि हमें पता कैसे चला कि आउटर कोर फ्लूइड है या एस्थेनोस्फीयर है, आउटर कोर है. हमें सिर्फ बाहर का पता है, अर्थ के सरफेस के बाहर पर हाउ इट लुक्स. हमें कैसे पता चला कि अंदर इतनी सारी लेयर्स है, इतना ज्यादा टेम्परेचर है, इतनी ज्यादा डेंसिटी. सो लेट्स डू दैट. फॉर एग्जाम्पल, अर्थ का हमें इंटीरियर पता करने के लिए वी हैव टू फैक्टर्स. वन इज डायरेक्ट सोर्स, अनदर इज इनडायरेक्ट सोर्स. डायरेक्ट सोर्स में फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वॉल्केनोज है, उसके अंदर से जो लावा हमें दिख रहा है, जो लावा बाहर आया है, उससे वी कैन गेट दैट व्हाट इज इनसाइड द अर्थ. उससे एक चीज पता चलती है कि अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है. इनसाइड इन द इंटीरियर अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है. आउटसाइड से कोई मिटियोर आ रहा है, आके अर्थ के सरफेस पे गिर रहा है, तो वो पता लगा सकते हैं कि बिकॉज अर्थ इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दो स्मॉल स्मॉल मिटियोर्स ओनली, वो भी यूनिवर्स का पार्ट है. तो हम ये पता लगा सकते हैं कि अर्थ के इंटीरियर में क्या है फ्रॉम मिटियोर्स ऑल्सो. नाउ फॉर एग्जाम्पल, ये हमारी अर्थ है. अब यहाँ पे कोई एनर्जी रिलीज हुई है, दिस इज नोन एज फोकस और हाइपोसेंटर. ठीक है, और जहां पे ये एनर्जी अभी स्प्रेड करेगी थ्रू आउट दिस अर्थ, और जहां ये हमारे पास यहाँ पे आएगी, दिस इज नोन एज एपिसेंटर. ठीक है, दिस इज नोन एज epicenter and this is hypocenter or simply focus. Okay, तो जो
ऊपर आ गई है, दिस इज नोन एज सरफेस वेव्स। जो तो हमारी सरफेस पे वेव्स आती है, जो ट्रेवल कर रही है यहाँ सरफेस पे, दीज आर नोन एज सरफेस वेव्स। इनका तो हमें पता है कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करती है, बहुत ज्यादा बिल्डिंग्स गिर जाती है ना, बहुत ज्यादा ऐसे लॉस होता है। बट व्हाट अबाउट जो इंटीरियर में ट्रेवल कर रही है, दीज आर नोन एज बॉडी वेव्स, जो बॉडी के अंदर ट्रेवल कर रही है। बॉडी के अंदर जो ट्रेवल करती है, दीज आर ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी वेव्स एंड सेकेंडरी वेव्स। इन शॉर्ट वी कैन से P waves and S waves. Alright? So इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। Let's discuss those properties. जो P waves होती हैं, इनकी प्रॉपर्टी होती है कि ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस मैटर से पास ऑन कर देती है, पेनिट्रेट हो जाती है। प्राइमरी वेव्स एंड सेकेंडरी वेव्स। जो प्राइमरी वेव्स होती हैं, दीज आर फास्टर देन सेकेंडरी वेव्स। सेकेंडरी वेव थोड़ी स्लो चलती है, राइट, दीज आर स्लो। जो हमारी प्राइमरी वेव्स होती हैं, वो चाहे सॉलिड मीडियम हो, चाहे लिक्विड मीडियम हो, और चाहे गैसियस मीडियम हो, ये पास ऑन कर देती है। बट जो जो सेकेंडरी वेव्स होती हैं, दीज ओनली पासेस थ्रू सॉलिड मीडियम। So these secondary waves will tell us कि in the interior of the earth actual में क्या है, right? Because at one moment ये वाली disappear हो जाएंगी and ये थोड़ी सी slow हो जाएंगी and ये deflect करनी start हो जाएंगी. So let's do that. Primary waves, secondary waves, primary and secondary. For example, ये 4 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं, एनर्जी रिलीज हुई है एंड ये ट्रेवल कर रहे हैं। तो जैसे ही ये हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में एंटर हुई, तो जैसे ही हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में एंटर होती है, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट डेंस है, तो ये अपनी स्पीड गेन कर लेगी 5 किलोमीटर पर सेकेंड। जैसे ही ये बेसाल्टिक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज मेड अप ऑफ ग्रेनाइटिक लेयर एंड बेसाल्टिक लेयर, तो जैसे बेसाल्टिक लेयर में आएगी 6 किलोमीटर पर सेकेंड, वो और डेंस है। नेक्स्ट हमारे पास आया थोड़ा सा सॉलिड पार्ट, 7 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमारे पास आता है एस्थीनोस्फीयर। अभी आई हैव टोल्ड यू कि जो एस्थीनोस्फीयर है, इट हैज ओलिवाइन मिनरल्स। अभी ओलिवाइन मिनरल्स हैं, इट मीन्स इट इज प्लाज्मा इन स्टेट, सेमी मोल्टन है, नॉट प्लाज्मा, सॉरी, सेमी मोल्टन। तो इतनी डेंस नहीं है जितना ये अपर पार्ट डेंस है, इसीलिए एक रिलेशन है कि जितनी डेंसिटी हाई है उतनी स्पीड ज्यादा हाई है। ऑलराइट, तो हमारे पास यहाँ पे किसकी डेंसिटी थोड़ी कम है, एस्थीनोस्फीयर की, देयरफॉर जो ये वेव्स आ रही हैं, जो P एंड S वेव्स आ रही है, इनकी स्पीड थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी, 6.8 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके,
नेक्स्ट वी हैव मिडल मेंटल, राइट। अब मिडल मेंटल है, हार्ड पार्ट आ गया तो एकदम से ये स्पीड अपनी गेन करेगी, फॉर एग्जाम्पल 8 किलोमीटर्स पर सेकेंड, और वी कैन से 8 to 9 किलोमीटर्स पर सेकेंड। नेक्स्ट हमारे पास आता है लोअर मेंटल। लोअर मेंटल में ये एकदम से और ज्यादा स्पीड गेन कर लेगी क्योंकि ये बहुत ज्यादा डेंस है। तो डेंस होने के कारण हमारे पास इसकी स्पीड हो जाएगी 9 to 11 किलोमीटर पर सेकेंड, एंड दिस जोन इज known as zone of high velocity या high velocity zone। हाई वेलोसिटी जोन हम इसको बोलते हैं, इसमें इसकी स्पीड मैक्सिमम होती है। अब जो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आ रहा है दैट इज आउटर कोर। अब आउटर कोर इज प्लाज्मा इन स्टेट, यहाँ पे आयंस है, रोटेट कर रहे, लेट्स से इट इज इन फ्लूइड फॉर्म। ओके, ये फ्लूइड है तो क्या होगा, जो हमारी एस वेव आ रही है ऊपर से ये सडनली डिसअपियर हो जाएगी कहीं, एंड जो हमारी पी वेव ऊपर से आ रही है ये डिफ्लेक्ट हो जाएगी एंड इट विल डू अ जिगजैग मूवमेंट। और जैसे ही हमारी इनर कोर आएगी ये दोबारा से अपनी स्पीड पकड़ लेगी, एंड यहाँ पे क्या होगा, जो हमारी पी वेव है इसकी स्पीड भी कम हो जाएगी एंड इसका जो पाथ है वो डिफ्लेक्ट करेगा और जिगजैग मूवमेंट करेगा, एंड यहाँ से हमारी सेकेंडरी वेव डिसअपियर हो जाएगी। और जैसे ही इनर कोर आएगा इसको और ज्यादा डेंसिटी मिलेगी, अपनी स्पीड दोबारा से रिगेन कर लेगी और वी कैन से 12 किलोमीटर पर सेकेंड। सो दिस इज ऑल कि ऊपर से लेके नीचे तक क्या है हमारा, कैसा है पी वेव्स का नेचर, कैसा है पी वेव्स चलती आ रही है। पी वेव्स जब इसका मीडियम चेंज होता है तो पी वेव अपना बिहेवियर चेंज करती है, एस वेव भी करती है टिल द टाइम विच इज फ्लूइड ना हो। फॉर एग्जाम्पल एस्थेरोस्फीयर में इन दोनों ने अपना बिहेवियर चेंज किया एंड इट डिक्रीज्ड इट्स स्पीड। पी वेव ने अपनी स्पीड डिक्रीज करी, एस वेव ने अपनी स्पीड डिक्रीज करी, एंड जैसे उनको और ज्यादा डेंस मटेरियल मिल गया नीचे, इन्होंने अपनी स्पीड रीगेन कर। एट द एंड जैसे मेरे पास आउटर कोर पे ये आता है तो अपनी ये डिस्प्लेस्ड हो जाती है इसकी पोजीशन और इस जिगजैग मूवमेंट करता है, एंड जैसे ही ये सॉलिड जोन में आता है इट अगेन रीगेन्स इट्स स्पीड। सो अभी हम ये कह सकते हैं कि एक रिलेशन मिलता है, आई हैव टोल्ड यू दिस, जैसी ही डेंसिटी बढ़ती है, जितनी डेंसिटी या रिजिडिटी बढ़ती है स्पीड उतनी ही बढ़ती है। सो वी कैन से दैट ये अर्थ है एंड ये कोर है, तो पी वेव यहां से चली, यहाँ पे कोर है, आउटर कोर है हमारे पास, ये हमारा फ्लूइड है, जिगजैग करेगी और दोबारा से अपनी रीगेन करेगी जब हम ये बाहर आ जाएगी, ऐसे ही ऐसे जाएगी एंड ऐसे। सो दिस एरिया इज नोन एज शैडो जोन ऑफ पी वेव्स। पी वेव्स इस वाले कोर में एंटर करती है, बट जो हमारा एस वेव्स होती हैं वो इस वाले एरिया में एंटर नहीं करती। एस वेव्स डू नॉट एंटर इन द आउटर कोर, दे सडनली डिसअपीयर्स। सो लेट्स सी, दिस इज कोर, तो एस वेव्स ऐसे आएंगी, ऐसे। सो दिस इज द shadow zone of S waves. Okay.
So these are the two things जो इसका एक crux हमें मिला है. So you can take this screenshot of it. Okay, I think you have taken. So this is all about today's lecture. So if you like this video and if you like this lecture, so do like, share, subscribe and comment to the video. Thank you very much.